नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। The nectar of instruction, Shri Deshamrita. Text number 4. Dadati pratigrihnati. Page number 44. Open कीजिए. ददाति प्रतिगृह्णाति। ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति। गुह्यम् आख्याति पृच्छति। गुह्यम् आख्याति पृच्छति। भुङ्क्ते भोजयते चैव। भुङ्क्ते भोजते चैव। सद्विधं प्रीतिलक्षणम्। सद्विधं प्रीतिलक्षणम्। Let's take word meaning now. Dadati gives charity. Gives charity. Pratigrihnati Pratigrihnati accepts in return. accepts in return. Guhyam Guhyam confidential topics. confidential topics. Akhyati Akhyati explains. explains. Pritchati Pritchati inquires. inquires. Bhunkte Bhunkte eats. eats. Bhojayate Bhojayate feeds. feeds. Cha Cha also. also. Eva Eva certainly. certainly. Satvidham Satvidam 6 kinds. 6 kinds. Priti Priti of love. of love. Lakshanam Lakshanam symptoms. symptoms. ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयति चैव सद्विधं प्रीतिलक्षणम्। Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasad and offering prasad are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. So 6 symptoms or 6 loving exchanges in devotional service or in loving relationship. This is the topic today. 6 loving exchanges. So इसके पहले के श्लोक में भी जैसे डिस्कस किया कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। संग त्यागात् सतो वृत्ते। बैड एसोसिएशन वी हैव टू रिजेक्ट, वी हैव टू अवॉइड। सो जब भी हम स्क्रिप्चर की बात करते हैं तो देखते हैं उसमें एक तरफ जहाँ पर निगेशन की बात होती है कि डोंट डू दिस, और साथ ही साथ जो डूज हैं उसकी तरफ भी फोकस किया जाता है, क्योंकि केवल वन साइडेड होने से काम नहीं चलेगा. वी हैव टू सी बोथ ऑफ द एस्पेक्ट्स. व्हाट I mean things we have to avoid and what are those things we have to accept and practice. So bad association which is not favorable to advance in Krishna consciousness, and good association, association of devotees which will help us to progress in Krishna consciousness. So यहाँ पर now what we are learning that
because this Krishna consciousness is not a journey alone. It's a journey in association with devotees. So when we come in association with devotees, other people, then there are some dealings. So if we practice those dealings or those behaviors, or then what will happen? We will develop a good relation with others, and that will help us to grow, to advance in life, and to experience love, to experience peace, satisfaction, right? So this is something very easy to understand. Why? Because we know the significance of relationship in our life. If we have good relationship, our life will become beautiful, right? So before, this is all about, Krishna consciousness is all about relationship. Developing relationship with Krishna and developing relationship with devotees of Krishna, right? So when we come in association with devotees, so what are those loving exchanges we should practice so that we can develop loving relationship? This is the topic, today's topic. Any relationship. Prabhupada is giving example, even businessman or any materialistic people also, when they meet or they do any kind of business, so there are some exchanges, to establish relationship, right? So what are those points? That is what we are going to discuss today. Okay, so relationship ko, let's discuss this first, then we will. What is that first thing? जब relationship की बात आती है, what you think that this will help me to develop a good relation? क्या करेंगे आप? हम लोग आपस में हैं, हम क्या ऐसा करेंगे जिससे हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो? क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? Help each other when we meet. Yes. We'll help each other when they Help meet each other. us Yes. Help each other without any motive. without any motive. कीर्तन करेंगे, ग्रुप कीर्तन, कीर्तन करेंगे एक साथ मिलकर, spend time together, टाइम स्पेंड करेंगे. टाइम कैसे स्पेंड करेंगे? भक्ति, हाँ, वही क्या कीर्तन करेंगे और क्या करेंगे? हाउ डू वी स्पेंड टाइम विद अदर्स? exchanging ideas, thoughts एक्सचेंजिंग आइडियाज अबाउट व्हाट? about और कृष्णा के बारे में ही डिस्कस About करना, devotional service. कृष्णा के बारे में ही सब कुछ जानना, कृष्ण के बारे में जानना. जब हम मिलेंगे, डिस्कस करेंगे और ज़्यादा भगवान के विषय में जानने की कोशिश करेंगे. यस, गुड एक्टिविटी. चैंटिंग करेंगे और क्या करेंगे? टू जो चीज़ें आपकी रिलेशन या लविंग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, वॉट एवर यू थिंक. यस, और क्या करेंगे? offer prasadam to each other. ऑफर प्रसादम. मंदिर जाएंगे साथ में, मंदिर साथ में जाएंगे, लेकर जाएंगे, लेकर. यस, और सोचते जाइए ऐसे ही, क्योंकि सारा जो हम डिस्कस करने वाले हैं सब आपको पता है. लेट्स मेक इट मोर इंटरैक्टिव. क्या लगता है आपको और क्या करेंगे? या नॉर्मली आप जब भी किसी रिलेशन में आते हैं, कैसे लगता है आपको कि उनको अगर हम ऐसा करेंगे या इस तरह का बिहेवियर जिससे या एक्टिविटीज़ जिससे हमारा रिलेशनशिप और अच्छा होगा? क्या करते हैं उसमें हम? Share जैसे experiences with each other. Our Sharing own journey, experiences. कहाँ पे what went right, what went wrong, वो share Means करो. exchanging Exchanging hearts. yes. हम एक दूसरे से जब मिलते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल हमारे जो क्लोज हैं, हम अपना हार्ट एक्सचेंज करते हैं, अपने हृदय की बात उनके सामने रखते हैं, उनके हृदय में क्या है उसको सुनते हैं, राइट? दिस इज़ वन एक्टिविटी. आपने बताया प्रसादम, कि किसी को प्रसादम के लिए इनवाइट करना, जैसे होता है ना डाइनिंग, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में डाइनिंग, के लिए आज डिनर करना है साथ में या लंच करना है, कहीं आउटिंग बाहर जाना है, लाइक दैट. सो हम प्रसादम के लिए इनवाइट करना किसी को, खुद प्रसादम पाना और लोगों के यहाँ जाकर प्रसाद पाना और लोगों को प्रसादम के लिए इनवाइट करना, राइट? ये एक्टिविटीज़. और क्या है? एक दूसरे को उपहार देना है. ये कृष्णा के बारे में जो भी बुक्स हैं, गिफ्टिंग अदर्स, गिफ्टिंग others. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट? हम देखते हैं अपने रिलेशन में हम लोगों को गिफ्ट करते हैं ना, कुछ कोई भी ओकेज़न है उसमें हम गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट देते भी हैं और गिफ्ट एक्सेप्ट भी करते हैं. सो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, उसको अच्छा बनाती है. और यही चीज़ श्री रूप गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं. ददाती, ददाती यानी गिविंग.
एंड प्रतिगृह्णाति मीन्स रिसीविंग। तो क्या देना है? अब हम बात कर रहे हैं कि हम डिवोटीज एसोसिएशन में हैं, हमारा पर्पस कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण प्रेम है। सो अब हम वही सेम प्रिंसिपल जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड फॉलो करता है, वही सेम प्रिंसिपल यहाँ भी एप्लीकेबल है। पर्पस डिफरेंट है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो पर्पस है वो मटेरियलिस्टिक एन्जॉयमेंट हो सकता है, मटेरियलिस्टिक गोल हो सकता है। हम स्पिरिचुअल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो जस्ट हमें देखना है कि गिविंग प्रिंसिपल इज हियर ऑल्सो, ददाति, बट व्हाट टू गिव। तो हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या देंगे? व्हाट कैन वी गिव? कृष्ण कॉन्शियस गिफ्ट्स, एंड द बेस्ट गिफ्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज yes, giving knowledge, Bhagavad Gita, we can give books or so many other things, but one of the best gift जिसके लिए पूरा हमारा कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, what is that? Association. What we are giving to everyone, what is our main purpose? Harinam. Huh? Harinam. हरिनाम। हरिनाम और टाइम देना। Yes, so ये तो है एडवांस की yes, this is what the best gift we are giving to others. उसी तरह से जो भी ऐसी गिफ्ट्स जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में लोगों को हेल्प कर सकती हैं, गिविंग समथिंग, बुक्स दे रहे हैं और छोटी मूर्तियाँ बच्चों को दो ना, हाँ। I give all the children now this small यस कृष्ण की मूर्तियाँ होती है ना, यस and they like it so much. वेरी नाइस। हाँ, बच्चों के लिए जो भी आप दे सकते हैं। It is like them for toys, you know, like Yes. my grandson. हाँ He's so happy, you know. and this is right time if we engage children in such kind of activity like I say Gopi, अब वो जो एक्टिविटीज़ हमें करते हुए देखती है, राइट, अब वो जब बैठी है तो वो सेम एक्टिविटीज़ को इनेक्ट करती है। उसको भी कहीं माला मिल जाएगी तो माला चैंटिंग बीट लेकर बैठ जाएगी, या मंदिर कहीं खुला हुआ है तो वहाँ पे घंटी बजाकर भगवान को ऑफरिंग। एक दिन मैंने देखा कि मणिकरुणा उसके लिए कुछ क्ले लेकर आई थी। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो क्ले से जैसे तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं ना, अब उसने एक छोटा सा उसके पास कुछ था, उसी के ऊपर जैसे कैंडल लैम्प जलता है ना, वैसे रोल करके उसके ऊपर फिक्स कर दिया। यानी अब कैंडल या जो लैम्प है वो रेडी है और एक हाथ में बेल लेकर और उसी से वो भगवान की आरती। सो आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट। सो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, यस, ये सब चीज़ें हैं जो दिस इज़ वन पॉइंट। सो एनीथिंग विच इज़ helping us to develop Krishna consciousness, that is the gift we have to give, and the greatest gift in Krishna consciousness is holy name. भगवान का नाम देना, भगवान के विषय में लोगों को बताना। इसीलिए इस मोमेंट में जो हमारा प्राइम बिजनेस है, that is श्रवणम एंड कीर्तनम, श्रवणम एंड कीर्तनम। भगवान के विषय में सुनना है, भगवान के नाम को सुनना, कीर्तन सुनना और यही लोगों को देना। सो दिस इज़ द गिफ्ट वी हैव टू गिव, ददाति। सो यस, गिविंग चैरिटी टू द डिवोटीज, दिस इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी। और चैरिटी मीन्स वही जो हमने डिस्कस किया अभी, गिविंग होली नेम। सेकेंड इज accepting from the devotees whether they may offer whatever they may offer in return. So सिर्फ हमें receive नहीं करना है। Second is we have to give, exchange. This is what exchange. कोई भी relationship जहाँ पर सिर्फ हमने discuss किया है, if it is just taking, तो वो exploitation है, and that kind of relationship will not go long, will not sustain or will not give us satisfaction. That's a toxic relationship हमने discuss किया। So one relationship is at least in the mode of goodness, that is give and take is there. Loving exchange यहाँ पर है, वहाँ पे give and take है। और of course जब उसी को हम transcendental relationship बोलते हैं तो वहाँ भी give and take है, वहाँ भी exchange है, लेकिन उस exchange में कोई ulterior motive नहीं है। जब वो pure devotional service या pure love की बात करते हैं, there is no other motive. The only motive is to serve, to give, right? And whatever we are getting, receive. केवल give and take जहाँ पर होता है, जहाँ ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे रिलेशनशिप नहीं है,
वहाँ पर गिव एंड टेक में कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, वॉट एवर दे मे ऑफर। जहाँ केवल गिव एंड टेक होगा वहाँ क्या होगा, मैंने इतना दिया था, देखो उन्होंने क्या दिया। वहाँ ये सब कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा कि अगर मैंने इतना दिया है तो इतना आना चाहिए। मुझे याद है अभी गांव में जब शादियों में भी जब लड़की की शादी होती है ना, तो वहाँ लोग कुछ देते हैं और एक व्यक्ति बैठकर नोट कर रहा होता है। तो मैंने एक दिन अपने घर में पूछा तो डिस्कशन में हम देख रहे हैं कि अच्छा, उन्होंने मेरे घर में जब मेरी यहाँ शादी हुई थी तो उन्होंने शादी में इतना दिया था, तो हमें भी इतना ही देना है। तो ये टिपिकल कैलकुलेशन। हाँ, ये नहीं कह रहे इन्होंने तो इतना ही दिया और देखो तब मुझे भी इतना ही देना है। नो, जब वो ट्रांसजेंडर लविंग रिलेशनशिप होगा जब वो, तो वहाँ पर गिविंग एटीट्यूड और बढ़ जाता है। ओनली गिविंग, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बट वॉट एवर वी आर रिसीविंग, वॉट एवर वी आर गेटिंग, वी रिसीव हैप्पीली। ये नहीं सोचना है कैलकुलेशन या मेजरमेंट करना है कि कितना वहाँ से मिला था कितना यहाँ से। प्रभुपाद इसमें अभी एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि लाइक हमारी ये सोसाइटी है जो इसी गिव एंड टेक पॉलिसी पे बेस्ड है। प्रभुपाद इस पॉइंट को लिख रहे हैं यहाँ पर कि शुरू में सिंगल हैंडेडली मैंने इस मूवमेंट को शुरू किया और बाद में धीरे धीरे इसी गिव एंड टेक पॉलिसी के बेसिस पर, क्योंकि हमने लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस देना शुरू किया, उनको कीर्तन या चैंटिंग देना, जो भी नाम, होली नेम देना शुरू किया। इससे क्या हुआ, ये मूवमेंट वर्ल्ड वाइड हो गया, इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो गया और इसी पॉलिसी पर ये मूवमेंट चल रहा है क्योंकि लोगों को यहाँ से कुछ मिल रहा है और बदले में कह रहे हैं प्रभुपाद कि हम लोग क्या देते हैं। सो मेनी पीपल दे आर गिविंग सो मच, सपोर्टिंग, अदरवाइज सी सिंगल हैंडेडली विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी सपोर्ट, एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट कैसे खड़ा होगा। लोगों ने सपोर्ट किया, जिस प्रकार का सपोर्ट था उन्होंने उस प्रकार का सपोर्ट किया। किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, किसी के पास कोई स्किल है, किसी के पास टाइम है, किसी ने अपना नॉलेज, वॉट एवर दे हैड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड। और उसके बदले में उनको क्या मिल रहा था, प्रभुपाद सेइंग कि वी वर सिंपली गिविंग सम प्रसादम एंड वी वर गिविंग सम बुक्स और दिस एटमॉस्फियर, नॉलेज, जो भी है, स्मॉल कृष्ण कॉन्शियस गिफ्ट। अब ये हमारे लिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि दिस इज़ अ स्मॉल कृष्ण कॉन्शियस गिफ्ट, बट दिस इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव, राइट। वो जो बाकी के जो एक्सटर्नल या वो सारे जो सपोर्ट है, दैट इज़ ऑल ठीक है, दैट हैज़ सम वैल्यू, बट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। बट अभी अगर हम मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट करें तो कई बार लगेगा अच्छा हमने इतना सब कुछ किया लेकिन हमें क्या मिलता है। कई बार जैसे जन्माष्टमी का ओकेज़न आ गया है, कई बार टेम्पल में भी जो एक्सचेंजेस हैं कि लाइक लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, उसके बदले में टेम्पल भी कुछ गिफ्ट्स देता है। अब जो डिवोटीज़ हैं जो समझते हैं चीज़ों को, तो वॉट एवर दे रिसीव स्मॉल गिफ्ट, मे बी सम प्रसादम, मे बी सम पिक्चर ऑफ द लॉर्ड, दे फील हैप्पी। बट कई बार कुछ लोग होते हैं कि अच्छा मैंने इतना बड़ा डोनेशन दिया और गिफ्ट में ये छोटा पैकेट मिला। सो एनीवे, जब तक हमारी कॉन्शियसनेस बहुत एडवांस स्टेज में नहीं है, ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं। बट व्हेन वी आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी हैव टू डेवलप दिस एटीट्यूड ऑफ गिविंग, और दिस गिविंग एटीट्यूड विल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। एक ग्रीडी माइंड सेट वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। ये सब स्पिरिचुअल साइंस है जिसको हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसको एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। गिविंग हार्ट्स, हैप्पी हार्ट्स, राइट। और गिविंग हैंड्स आर नेवर एम्प्टी हैंड्स। जो जितना ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करता है उसके पास से उतनी सारी चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन जो गिविंग हार्ट्स आर नेवर एम्प्टी हैंड्स। These are principles that we should practice that. So in return, whatever we are receiving, we should accept it very happily. Opening one's mind to the devotees, ये हमने डिस्कस किया, ये पॉइंट आपने बताया। Opening one's mind, what is the meaning of this? क्या करेंगे इसमें? Opening one's mind, exchanging hearts. तो एक हो गया ददाती, प्रतिगृह्णाति, इसको बोलते हैं गुह्यम आख्याति, कॉन्फिडेंशियल एक्सचेंज। यानी अब कृष्ण कॉन्शियसनेस में बात करेंगे, इन जनरल क्या करेंगे आप, जैसे आप किसी बहुत क्लोज फ्रेंड आपके हैं, सबसे नहीं, ये जो एक्टिविटी वो सबके साथ नहीं होता है। somebody who is very close to you, somebody who will not exploit you, आप अपना हृदय किसके सामने रखेंगे? जो आपको समझ सके, जो आपको हेल्प कर सके।
किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जो उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा या उसको एक्सप्लॉइट करेगा कि देखो ऐसे ही है, राइट। तो ऐसे लोगों के बीच में अब डिवोटीज़ दे आर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पीपल, राइट। तो डिवोटी फ्रेंड का होना और अपना हार्ट एक्सचेंज करना, यहाँ पर एक्सचेंज हम क्या करेंगे, क्या बात करेंगे बताइए आप। Everything is mentioned here, but I'm just obstacles we face in our service. yes, How to get over those? yes, Especially obstacles. from senior devotees, they might have gone through that. Yes, somebody who is confidential, somebody who can help us. अब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आप बोलकर भी क्या फ़ायदा जहाँ पे आपको हेल्प मिलने वाला नहीं है। दिस इज़ गुड पॉइंट। सो एक्सचेंजिंग, आई मीन जो ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, जिसके कारण आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस नहीं कर पा रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को शेयर करना। या यहाँ पे प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि जैसे जो भी कृष्ण कॉन्शियस हमारा डिस्कशन है अपने हार्ट में, जो कुछ भी है डिस्कस करना। लाइक कभी जैसे आप सभी मिले एक दूसरे से, आपकी क्या चैलेंजेस आ रही हैं। अच्छा, हमने कृष्ण कॉन्शियसनेस हमने समझा, हमें इसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है, कैसे अपनी कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करना है, एडवांस होना है मुझे। अब उसमें जो जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं, या कुछ ऐसी चैलेंजेस जो हमारे घर में हैं, हमारे उस एसोसिएशन में हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो जब हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे तब हम ग्रो करेंगे। अगर हम उसको अपने पास से दबाए रखेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि देखो हमने आज ये बातें सुनी हैं और मुझे ये प्रैक्टिस तो करनी है लेकिन मैं ये कर नहीं पा रही हूँ, ये कर नहीं पा रहा हूँ, व्हाट शुड आई डू फॉर दैट। तो जब हम इन बातों को रखेंगे और डिवोटीज से जब हम सुनेंगे और साथ मिलकर एक दूसरे को हेल्प करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कभी कभी मंगल आरती आना, भगवान का दर्शन करना, भक्तों के संग में बैठकर नाम जप करना, दिस इज़ वन एक्टिविटी जो हमें हेल्प करती है एडवांस होने में। दिस इज़ एन ऑस्टेरिटी, बट अभी हम नहीं कर पा रहे। तो कुछ डिवोटीज़ जो ऑलरेडी इस चीज़ को कर रहे हैं, जो हमारे करीब हैं, हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। लाइक जैसे सीता कोमल माता जी बार बार इनवाइट करती रहती है मैसेज में कि चलो आज मंगल आरती कौन कौन जाने वाला है, लेट्स ट्राई। कौन सा हम बहुत रेगुलर हमें बाहर जाना पड़ता है, राइट। और 4:30 मॉर्निंग टाइम है, तो कई बार हम देखते हैं हमें कई बार बाहर जाना है, एयरपोर्ट पे जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे पहले, कितना एक्साइटेड होते हैं हम, जाते हैं। सो जस्ट लाइक दैट, वंस इन अ वाइल, आज चलो आज भगवान का दर्शन, अर्ली मॉर्निंग दर्शन करना है, तो वहाँ पे बैठकर, आज कोई और एजेंडा नहीं, आज भगवान का दर्शन करना है, साथ में बैठकर भगवान का नाम जप करना है। रोज़ तो बाकी एक्टिविटीज़ कर ही रहे हैं। सो वंस इन अ वाइल वी शुड टेक दैट एफर्ट। अब इसमें हम हेल्प ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें कि अच्छा सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, डिवोटीज़ हेल्प करेंगे या कोई सपोर्ट चाहिए, मेरे पास कोई जाने का साधन नहीं है, ठीक है, कारपूलिंग ये जा रहे हैं, इनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, लाइक दैट। So small things which is going to help us in Krishna consciousness, we should discuss and we should get it sorted or find out some solution. क्योंकि अगर हम solution नहीं find out करेंगे और सोचेंगे जैसा है वैसा ही चलता रहे, बैठे रहे, will not progress, right? और टाइम निकलता जाएगा। हम बैठे रहेंगे तो टाइम रुकने वाला नहीं है, हम रुके रह जाएंगे लेकिन टाइम रुकने वाला नहीं है। और फिर धीरे धीरे एक समय आएगा जब सिर्फ और रिग्रेट रह जाएगा, काश उस समय कर लिया। क्योंकि इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आज बॉडी आज जितना साथ दे रहा है, ऐसा नहीं आने वाला है वो दिन, आप सोचें कि एक दिन वो दिन आएगा जब एकदम सब कुछ परफेक्ट होगा और हम कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर सकेंगे। नो, इल्यूज़न है। आज सर्कमस्टेंसेस क्या है, कल बहुत इम्प्रूव्ड हो जाएंगी। जब हमारा बॉडी इतना परफेक्ट है, हेल्दी है, अर्निंग है, सब कुछ है, उस समय में अगर हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आगे आने वाला समय तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, राइट। सो वी शुड टेक प्रायोरिटी। I would like to know, say what at present what we are doing, chanting hai, darshan hai, whatever. So what stage are we? Like what are we supposed We to are be? sadhana. What like advanced stage is what? What Yes. what level should we reach? Like क्या क्या रह गया है? Very What nice we supposed to be doing? it? Yes, we will. Because we feel कि अभी we are going for Mangal Aarti also and we are attending sessions also. I'm doing chanting, I'm doing Yes. prashad जो भी. So I feel कि yeah I'm doing मतलब मैं कर रही हूँ, अच्छे से कर रही हूँ, like Krishna is there in my mind.
Yes. So what else now I need to or Yeah, very nice question. what's Let's that discuss statement? this also. एक तो I mean good point कि one is साधन. साधन means like we are साधक. जैसे पहले पूछा आपने ना कि हमारी स्टेज क्या है. हम सभी साधक हैं, जिसको प्रैक्टिशनर कहा गया है, या नियोफाइट डिवोटीज हु आर प्रैक्टिसिंग दीज टीचिंग्स. हम सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर्स. अब साधक यानी कुछ नियम या कुछ एक्टिविटीज़ हमें जो दी गई हैं, लाइक चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, वी आर डूइंग दैट. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी? क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है? डेवलपिंग कृष्ण प्रेम. इसमें भी आने वाला है, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे. भगवान यानी कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है उसको डेवलप करना, अपनी कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करना. अब ये सब टर्म हम सुनते आए हैं, राइट? प्रेम डेवलप करना, कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप कैसे होगा? यानी अट्रैक्शन डेवलप करना. अभी हमारा अट्रैक्शन जो बहुत सारी और वर्ल्डली चीज़ों में हो सकता है, अभी वो अट्रैक्शन कम ज़्यादा जो भी है, अभी जिस लेवल का अट्रैक्शन हम डेवलप करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम, वो हो सकता है अभी नहीं है. तो उसी को डेवलप कैसे करना है, उसके लिए कौन सी फेवरेबल एक्टिविटी है जिसको हमें कॉन्स्टेंटली करना है, किस मूड में करना है, किस माइंडसेट से. अब जैसे चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग हम रेगुलरली कर रहे हैं, लेकिन क्यों करना है चैंटिंग? क्या वो चैंटिंग जिस मूड में होना चाहिए उस मूड में हो रहा है, या सिर्फ एक मैकेनिकल एक्टिविटी बन गया है? क्या उस चैंटिंग को करने से मेरा हार्ट प्योरीफाई हो रहा है, यानी उसमें जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, क्या ये सब कुछ कम हो रही हैं? क्या भगवान के प्रति मेरा अट्रैक्शन बढ़ रहा है? अट्रैक्शन बढ़ने के सिम्टम्स क्या दिखेंगे? कि मुझे और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होगी, भगवान के विषय में और ज़्यादा सुनने की इच्छा होगी, और भगवान का दर्शन करने की बड़ी तड़प डेवलप होगी, इच्छा होगी, धाम यात्राओं की इच्छा होगी कि जाएं जरा भगवान का दर्शन करें. हाँ, तो ये है अट्रैक्शन. तो ये जो अट्रैक्शन डेवलप होगी धीरे धीरे, इसका मतलब हम एडवांस कर रहे हैं. यानी सिंपल लैंग्वेज में जो मटेरियल अट्रैक्शन है वो कम होता चला जाएगा, और जो स्पिरिचुअल अट्रैक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा. ये है एडवांसमेंट का साइन. अब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिवोटीज़ की बात करेंगे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिवोटीज़ की बात करेंगे. तो जिसको पहला स्टेज है, जिसको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं, एक कैटेगरी जो डिवोटीज़ की है, दैट इज़ कॉल्ड कनिष्ठ अधिकारी, यानी नियोफाइट डिवोटीज़. हम सभी उसी कैटेगरी में. नियोफाइट डिवोटीज़ की कुछ अपनी क्वालिफिकेशंस हैं उसकी, राइट? अभी हम एक्सटर्नली, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सभी, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जो एक्सटर्नल नहीं है. एक्सटर्नली हम जज नहीं कर पाएंगे कौन नियोफाइट है, कौन एक कनिष्ठ अधिकारी होता है, एक मध्यम अधिकारी होता है, और एक उत्तम अधिकारी होता है. यानी नियोफाइट डिवोटी एक है, मध्यम अधिकारी को एडवांस डिवोटी, एंड जो उत्तम अधिकारी यानी कि टॉप मोस्ट, ये तीन कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज़ हैं. अब जो कनिष्ठ अधिकारी है, अभी वो साधक है, वो चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग ये सब कर रहा है, भगवान की सेवा में उसका अट्रैक्शन है, या भगवान की तरफ उसका अट्रैक्शन है, लेकिन डिवोटीज़ में ज़्यादा उसका वो नहीं है. मतलब अभी वो डिवोटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, डिवोटीज़ की सर्विस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता. तो बड़ा रिचुअलिस्टिक काइंड ऑफ है, इसको इस तरह से समझिए, बड़ा रिचुअलिस्टिक है. वो बस एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन उस एक्टिविटी का जो पर्पस है, जो हम बात कर रहे हैं, डेवलपिंग लव विद इन कम्युनिटी, विद इन डिवोटीज़, एंड डेवलपिंग लव फॉर कृष्णा, अभी वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, रिचुअलिस्टिक. हाँ, एंड जो मध्यम अधिकारी है वो एडवांस स्टेज में है. वो हमेशा कृष्ण के लिए सोचता है, वो कृष्ण के लिए एक्टिविटीज़ करता है, उसकी प्लानिंग, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग. जैसे हमारे मंदिर में जैसे हमारे सन्यासीज होते हैं, उनका एक ही एजेंडा होता है, वॉट एवर दे आर डूइंग फॉर कृष्ण, दे आर प्रीचिंग. मध्यम अधिकारी प्रचार करता है, हाँ, वो प्रीच करता है, सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, मैसेज को प्रीच करता है. वो डिस्क्रिमिनेट करता है. ये क्वालिटी उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी में एक डिफरेंस क्या है? जो उत्तम अधिकारी है उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल इतना एडवांस होता है कि वो हर व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ देखता है. हर व्यक्ति के हृदय में वो भगवान को परमात्मा के रूप में देखता है. अपने आप को सबसे ज़्यादा तुच्छ समझता है, वो इनसिग्निफिकेंट. उसको ऐसा लगता है कि इस संसार में सभी बहुत एडवांस हैं, सिर्फ मैं ही एक इकलौता हूँ जो एकदम तुच्छ हूँ. हमेशा कृष्ण में एब्जॉर्ब है वो.
हाँ, ह्यूमिलिटी की हाइट जिसे कहते हैं। इसीलिए जो उत्तम अधिकारी है वो प्रचार नहीं कर पाता है, वो किसी को प्रीच नहीं करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि सब मुझसे श्रेष्ठ हैं। अब टीचिंग किसको दोगे आप किसी को टीच करना चाहते हो तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी को टीच करने की आवश्यकता है, उसको नॉलेज नहीं है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है, परमहंस, एडवांस स्टेज जो होता है ना, तो वो उस स्टेज में वो प्रीच नहीं कर पाता है। लेकिन यही उत्तम अधिकारी प्रीच करने के लिए वो उस मध्यम अधिकारी के स्टेज पर आते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, अब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सभी उत्तम अधिकारी हैं, बड़े बड़े सन्यासी, ये उत्तम अधिकारी हैं। ये इनकी कॉन्शियसनेस में कृष्ण और कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ चलता ही नहीं। 24 आवर्स सोते जागते एक ही चिंतन होता है। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, वर्ल्डली लोगों से मिलते हैं। उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन ये मध्यम प्लेटफॉर्म पे, जो मिडिल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जानबूझकर आते हैं ताकि वो प्रचार कर सकें। सो आपका जो प्रश्न है कि हमें ये जो प्रोसेस है, जो साधन है, एक्टिविटीज़ हैं, इसको सिंसियरली, रेगुलरली करते रहना है, और इसी कॉन्शियसनेस, इसी मूड में इसका जो पर्पस है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट एंड डेवलपिंग लव फॉर कृष्णा एंड कृष्णाज डिवोटी। अगर वो डेवलप हो रहा है, इट मीन्स वी आर एडवांसिंग। अगर ये लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है, उसका सेकंड जो नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट भी जानना ज़रूरी है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या फेवरेबल है, क्या फेवरेबल नहीं है। दूसरी तरफ हमें अगर इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, हमें इंटरेस्ट नहीं है चैंटिंग करने में, या हम भक्तों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो डिवोटीज़ हैं या डिवोशनल सर्विस हैं, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, निंदा करते हैं, राइट। ये क्या है, ये यानी हम कृष्ण से दूर जा रहे हैं। ये एक्टिविटीज़ हमें कृष्ण से दूर लेकर चली जाएंगी, राइट। हम नीचे गिर रहे हैं। तो ये दोनों पैरामीटर का पता होना ज़रूरी है। हम एडवांस कर रहे हैं या हमारा फॉल डाउन हो रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। सो दीज आर द पैरामीटर्स टू नो अबाउट इट, राइट, क्लियर। सो ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति तो हो गया जो हम एक्सचेंजेस हैं, ओपनिंग वंस माइंड टू द डिवोटीज। पृच्छति मीन्स इंक्वायरिंग फ्रॉम देम अबाउट द कॉन्फिडेंशियल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। पूछना, पृच्छति, कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। हाँ, हमें पूछना चाहिए कि हम, या जिनके साथ भी हम किसी की सेवा कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी हेल्प, वी शुड आस्क। प्रभुपाद इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि लाइक बहुत से ऐसे डिवोटीज जो लाइफ मेंबर्स हैं इस्कॉन के, या जैसे संडे लव फीस्ट प्रोग्राम, हमारे यहाँ संडे लव फीस्ट प्रोग्राम होता है। प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि जो इस्कॉन है, ये जो सोसाइटी प्रभुपाद ने बनाई है, इसका पर्पस क्या है। यही जो 6 लविंग एक्सचेंजेस हैं, इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे हम आते हैं और यही एक्टिविटीज़ करते हैं, राइट। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति, ऐसे लोग आते हैं मंदिर में, मिलते हैं, हम उन्हें जो भी एक गिविंग प्रसाद देते हैं, उनको भगवद गीता के बारे में कुछ ज्ञान देते हैं, तो लोग पूछते हैं फिर हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये मन में आता है, स्वाभाविक है, राइट। जब हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हमें दिखता है कि कितना अच्छा वातावरण है, कितने अच्छे लोग हैं, कैसे यहाँ भगवान की भक्ति और पूजा सेवा हो रही है, तो मन में अपने आप ये इच्छा आती है कि अच्छा, मैं भी कैसे इसका हिस्सा बनूँ, मैं भी कैसे सेवा करूं। भगवान ने मुझे जो दिया है वो शक्ति, बुद्धि, जो भी धन संपत्ति, कैसे मैं इसको एंगेज करूं भगवान की सेवा। प्रभुपाद कह रहे हैं, तभी तो ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, तभी तो ये प्रचार कार्य आगे बढ़ रहा है। सो आस्किंग, इंक्वायरी। पर्सनल लाइफ में देखें तो कैसे हम एडवांस कर सकते हैं, जैसे अभी आपने पूछा, तो ये प्रश्न हमें पूछना है। हम जैसे हैं वैसे ही नहीं रहना है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये प्रश्न हमेशा पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्या मुझे करना है जिससे मैं एडवांस हो सकूँ, ये पूछना चाहिए, इंक्वायरी। एंड ऑनरिंग प्रसाद और स्पिरिचुअल फूड गिवन बाय द डिवोटीज एंड फीडिंग द डिवोटीज विद प्रसाद। हाँ, तो भूंगते भोजयति चैव बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं रिलेशनशिप के लिए। भूंगते भोजयते, भूंगते मीन्स एक्सेप्टिंग प्रसाद, and bhojayate means inviting for prasad,
हम घरों में भी करते हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करते हैं, आज चलो साथ में डिनर करेंगे, तो कभी हम उनके घर जाते हैं, कभी हमारे घर आते हैं। ये एक्टिविटीज़ जहाँ होगी वहाँ रिलेशनशिप बना रहेगा। अब ये सब चीज़ें मिसिंग हैं आज की डेट में ना। आज गेस्ट अगर कोई आता भी है तो बहुत बर्डन लगने लगता है। बट डिवोटीज़ कम्युनिटी में आप देखेंगे डिवोटीज़ हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, प्रभु प्लीज़ चलो आज माता जी आ जाते हैं, आज मेरे घर, ये सब कुछ, ये एक्टिविटीज़, ये रियल लाइफ है ना। और डिवोटीज़ की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, कई बार क्या होता है कि हम जैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ में यही एक्टिविटीज़ बर्डन बन जाती है, क्योंकि वहाँ इतना सब कुछ अरेंजमेंट्स, और क्योंकि वो शो ऑफ की लाइफ है। आज हमारे यहाँ घर में लोग आएंगे, देखेंगे तो बहुत कुछ कैसे होना चाहिए, बहुत ऑपुलेंस, ये वो, बड़े बड़े घरों में जाइए तो देखिए उस ऑपुलेंस को मेंटेन करने में उनकी एंग्जाइटी हो जाती है। बल्कि और कोई आ गया घर में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हमें डिवोटीज़ लाइफ में सिंप्लिसिटी को प्रैक्टिस करना है। कई बार मैं डिवोटीज़ को देखता हूँ, मुझे अभी मैं किसी से डिस्कस कर रहा था और वहाँ पे बता रहे थे कि वो भक्ति वृक्षा क्लास उनको करनी थी, तो वो डिस्कस कर रहे थे कि किसके घर में करें। तो एक डिवोटी उसमें से बड़े एक्साइटेड होके आए, प्रभु जी मेरे घर में, इस बार की क्लास मेरे घर में करिए। तो प्रभु जी ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन पहले मैंने सोचा कि पहली बार वो भक्ति वृक्षा क्लास कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी अपनी क्लासेस करते हैं, तो पहली बार वो क्लास कर रहे हैं, तो एक बार मैं उनके घर पे विज़िट कर लूँ, उनके घर में क्या व्यवस्था है, कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, मैं उनको गाइड कर दूँगा। तो जब उनके घर में गए तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक तो वो 60 गज का घर, और उसमें भी जो कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर था, क्या है कि जिस कमरे में मुझे क्लास करनी थी ऐसा लगा कि मैं दरवाजे पे एंट्री कर रहा हूँ और जगह समाप्त। हार्डली 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं उसमें। हाँ, सो कुछ, क्योंकि वही छोटा सा घर है, सामान है, बट ही वॉज वेरी हैप्पी विद वन थिंग, दैट हार्ट। कुछ उन्होंने सोचा नहीं कितने भक्त आएंगे, उनका कैसे होना है, बट ही वॉज सो एक्साइटेड कि यस कर सकते हैं। So, I mean, we should be very excited. डिवोटीज़ को अपने घर में इनवाइट करना और प्रसाद उनको सर्व करना। वैसे ही डिवोटीज़ जब इनवाइट करते हैं तो बड़े ही एक्साइटेड होके जाना। जैसे आप लोग जाते हैं, कुछ घर से भी कुक किया, भोग लगाया भगवान को, या वहाँ ले गए, वहाँ भगवान को भोग लगाया। दिस इज़ लाइफ। और हमें क्या करना है, जितना ज़्यादा ये एक्टिविटीज़, मुझे अपनी लाइफ भी याद आ रही है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब मेरी एंट्री हुई, इट वाज नॉट फिलॉसफी कि शुरू में किसी बहुत फिलॉसफी को सुन के मैं अट्रैक्टेड हो गया। मेरी तो जस्ट एंट्री हुई टेंपल में, कुछ लोगों से मैं मिला, और मिलते ही वहाँ पर डिवोटीज़ जो थे उन्होंने बस हर इवनिंग मैं फ्री होता था, मैंने बताया मेरी जॉब जो है, मैं 5-6 o'clock तक फ्री हो जाता हूँ, उसके बाद मैं सो आई वाज देयर इन पुणे। और वो क्या करने लगे, अच्छा पता चल गया कि प्रभु जी इस समय इवनिंग में फ्री होते हैं, जहाँ जहाँ हाउस प्रोग्राम होता है वो एक कॉल कर देते थे, मैं चला जाता था। और उस हाउस प्रोग्राम में जब मैं जाता था और डिवोटीज़ दे आर चैंटिंग, डांसिंग एंड सर्विंग ईच अदर, सब फीस्टिंग कर रहे हैं, मुझे लगा क्या सुंदर जीवन है। हर डिवोटी अगर अपने अपने घरों में इसी तरह से एक डिवोटी को इन्वाइट, हम देखते थे आप रियली जो इन्जॉयमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। अगर हम बात करें एक अच्छी लाइफ स्टाइल की, कि आप अच्छा खाएं, अच्छे लोगों के बीच में हों, अच्छी अच्छी बातें करें, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ बेस्ट लाइफ। आप घर में क्या कुक करेंगे, कितना कुक करेंगे, कितनी वेराइटीज़ आप बनाएंगे, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप अगर अलग अलग डिवोटीज़ के यहाँ आपने जाने आने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, सो एवरी डे एटलीस्ट यू हैव समथिंग वेरी स्पेशल, वेराइटीज़ so much. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि only going and eating over there, but point is it's a very beautiful way of life. और यही है फाउंडेशन, खुशी। एक घर में अकेले बैठे एक ही जगह, एक ही मोनोटोनस लाइफ, और टाइम निकल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ बैड, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टाइम टू टाइम, बट लेट्स मेक इट मोर हैपनिंग। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने इसीलिए ये सोसाइटी डेवलप की है जहाँ पे लव फीस्ट, संडे लव फीस्ट का मतलब क्या है, वहाँ जहाँ डिवोटीज़ एक साथ इकट्ठे होते हैं, अपने एक साथ वो बैठकर भगवान के बारे में सुनते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रसाद पाते हैं, सर्व करते हैं। इसीलिए देखेंगे सर्विंग एट प्रैक्टिस,
डिवोटीज़ क्या करते हैं, वो सर्व करते हैं, ये सर्विंग एटीट्यूड डेवलप करते हैं, जाकर सेवा करते हैं और फिर आखिरी में बैठ कर प्रसाद खाते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हैं जो हमारा हार्ट प्योर करती हैं और हमारे हृदय में दूसरों के लिए लव डेवलप करती है, राइट। सो वी हैव टू दिस भुंगते भोजयते चय। तो ये 6 एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे रिलेशनशिप को बहुत ही सुंदर बनाती हैं, राइट। और इसी को प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया, तो आज मैंने रीडिंग नहीं की। तो बेसिकली एक तो प्रभुपाद एसोसिएशन की बात कर रहे हैं कि हमें कैसे डिवोटीज़ एसोसिएशन में रहना है और डिवोटीज़ एसोसिएशन में रहते हुए हमें कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। हमने ये भी डिस्कस किया क्या नहीं करना है, कुछ पॉइंट्स। एटलीस्ट हम डिवोटीज़ एसोसिएशन में हैं, जो कि आगे आने वाला है। अभी नेक्स्ट श्लोक में हम ये भी डिस्कस करेंगे, श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जो अलग अलग कैटेगरी हमने डिस्कस की अभी, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, तो ये अलग अलग कैटेगरीज़ के डिवोटीज़ हैं। इनके साथ एसोसिएशन होना कैसे चाहिए, हमें कैसे, कितना, किसको, कब, कैसे रेस्पेक्ट देना है, ये सब भी अब हम धीरे धीरे सीखेंगे। हाँ, अलग अलग कैटेगरीज़ के डिवोटीज़ हैं, तो सभी डिवोटी एक समान भी नहीं है। एक्सटर्नली सभी डिवोटी एक जैसे दिख सकते हैं, धोती कुर्ता पहने हुए, तिलक लगाए हुए, कंठी माला धारण किए हुए, लेकिन कॉन्शियसनेस के लेवल पर डिवोटीज़ की भी डिफ्रेंशिएशन या कैटेगरीज़ हैं। तो हर डिवोटीज़ के हमें कैसे डिवोटीज़ के साथ एसोसिएट करना है, कैसे उनको रेस्पेक्ट देना है, ये सब डीलिंग्स हम सीखेंगे। क्यों? नहीं तो क्या होगा, हम ऑफेंसिव हो जाएंगे, या हमें एसोसिएशन, सही एसोसिएशन नहीं पता होगा, सही मीनिंग नहीं पता होगा, हम कहीं न कहीं हो सकता है बैड एसोसिएशन में चले जाएं। तो बैड एसोसिएशन इज़ वेरी डेंजरस इन आवर एडवांसमेंट। जिन लोगों का संग करेंगे आप, वैसा ही आपका रंग होगा, वैसे ही आप कृष्ण कॉन्शसनेस में या तो एडवांस होंगे या तो आप पीछे जाएंगे। तो प्रभुपाद एसोसिएशन की बात कर रहे हैं और इस पूरे कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट का पर्पज़ यही है। कृष्ण, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त गौरय उदय। ये जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, जो हम सभी के जीवन का उद्देश्य है, पर्पज़ है, साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त गौरय उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है, ये कोई बाहर से हमें लाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम सभी के हृदय में है। इसको प्रकट करना है, मैनिफेस्ट करना है। कैसे प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा, क्या करना होगा? श्रवण आदि शुद्ध, श्रवण आदि यानी श्रवण और कीर्तन, चैंटिंग एंड हियरिंग, ये 2 एक्टिविटी इसको रेगुलर करना है, चैंटिंग एंड हियरिंग। सो स्पेशली जो चैंटिंग की बात कर रहे हैं, और इसके आगे के पॉइंट पेज नंबर 48 पर चैंटिंग की जो ग्लोरिफिकेशन है, इसके विषय में बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने नाम कीर्तन दिया हम सभी को, और शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक यहाँ कोट किया गया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रूयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम। तो यहाँ पे नाम ये सब पहले सुन चुके हैं आप, बट चैंटिंग करने के जो बेनिफिट्स हैं शिक्षाष्टकम में, सोचिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम इतना वंडरफुल, ये 8 श्लोक जो दिए हैं उन्होंने, और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है ये, जो हम अभी बात कर रहे थे कि नियोफाइट स्टेज से जो एडवांस स्टेज ऑफ डिवोशन है, कृष्ण प्रेम की स्थिति तक कैसे पहुंचना है, तो एक एक श्लोक उसी पर आधारित है। हाँ, तो सबसे पहले हृदय को शुद्ध करना है, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय को शुद्ध करना है, और उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है? नाम, भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन। तो नाम कीर्तन करने से या नाम जप करने से क्या होगा? चित्त का मार्जन होगा। अपने आप में ये टॉपिक है बड़ा। और भव महादावाग्नि, हम सभी का हृदय जल रहा है अग्नि में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य की अग्नि हमें जला रही है, और ये महादावाग्नि है। दावाग्नि बोलते हैं जंगल में लगी आग। उसको कौन बुझा सकता है? जो जंगल में लगी आग है, कोई फायर ब्रिगेड नहीं। उसके लिए क्या ज़रूरत होगी? रेन वाटर,
जब भगवान की वर्षा करेंगे तब वो दावाग्नि शांत होगी। उसी तरह से हमारे हृदय में जो अग्नि है, ये काम क्रोध लोभ की अग्नि जो है, ये शांत होने वाली नहीं है। इसके लिए भी भगवान की कृपा, और वो कृपा है भगवान का नाम। जब उस नाम का कीर्तन करेंगे, जप करेंगे सिंसियरली, रेगुलरली, तब ये नाम की कृपा से क्या होगा? श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम, अग्नि शांत होगी। हाँ, और चंद्रिका, चंद्रिका यानी चंद्र, मूनलाइट, जो बहुत ही शीतल है। ये जो मूनलाइट है, ये शीतलता हमारे हृदय में होगी। हाँ, और ऐसे बहुत सुंदर ये श्लोक है, पता नहीं ये सब श्लोक में तो इसमें इसका अपना डिस्क्रिप्शन है। हाँ, कैरव ये एक लोटस फ्लावर है, वाइट लिली जिसको कह सकते हैं, या वाइट लोटस। ये चंद्रिका के किरणों से खिल जाती है। उसी तरह से जब ये नाम रूपी चंद्रिका का जब वितरण होगा, जब हमारे ऊपर इसकी कृपा वर्षा होगी, तो हमारे हृदय में क्या होगा? ये कमल पुष्प, यानी हृदय शांत हो जाए, आनंद। हाँ, कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो ये नाम के विषय में बताया जा रहा है। ये नाम क्या है? विद्यावधु। वधु किसे कहते हैं? वधु का मतलब वधु, वर वधु, सुनते हैं ना? हाँ, तो यहाँ पर विद्यावधु, घर में जब बहू आती है ना, वधु आती है ना, वो घर में एक मुखिया की तरह एक श्रेष्ठ हो जाती है ना। वो शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। अब बाद में हो ना हो, लेकिन वधु और घर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल। तो विद्या वधु जीवनम, तो सभी विद्याओं का, सभी शास्त्रों का जो सार है वो क्या है? नाम। श्रीमद् भागवतम पूरा पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद जो नाम, जो अंत में क्या शिक्षा दी जा रही है? नाम, नाम, नाम की बात की जा रही है। यानी भगवान का नाम वो सभी विद्याओं का राजा या विद्याओं, जब ये सभी विद्या का सार है। नाम जब इसीलिए बहुत स्ट्रेस, बहुत जोर दिया जाता है उसमें। आपको कोई बात समझ में आ रही नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ भगवान का नाम लेते जाइए, प्रार्थना कीजिए, कृपा याचना कीजिए, हे प्रभु बस किसी तरह, गलतियां तो हो रही हैं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, कलयुग में है और ये मंद बुद्धि है, कमियां हैं, क्या करूं, बस इतनी कृपा कीजिए कि ये नाम जिह्वा पे रुके ना, ये नाम चलता रहे। जब समय मिले भगवान के सामने बैठ कर वी हैव टू क्राई फॉर कृष्ण। आसान नहीं है ये, भगवान को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, इसी जीवन में प्राप्त करना है। कल मेरा एक टॉक शो था, आपने देखा था? आई डोंट नो, मैं मैसेज भेजना भूल गया था। हाँ, सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। कलयुग, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं भी वही रीड कर रहा था somehow, but still in spite of knowing we commit so many things, but we have to understand। ये अपॉर्चुनिटी एक बार मिस करेंगे, अब नेक्स्ट लाइफ वो किस टाइम में ह्यूमन लाइफ हमें मिलेगी, और हो सका पता चला कलयुग के एंड में मिला। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। पिक्चर हो रही है सच में? हाँ, पिक्चर शूटिंग हो रही है? नहीं, वो रिलीज हो चुकी है। हाँ, वो तो बॉलीवुड मूवी है, बॉलीवुड मूवी है कल की, आई थिंक। हाँ, वो रिलीज हो चुकी है। यस, कमल हासन, अमिताभ बच्चन और जो भी है उसमें है। आई कुड नॉट सी दैट मूवी, ट्रेलर देखा मैंने, उसके बेसिस पे रिव्यू हुआ। हाँ, देख सकते हैं। आई मीन सी, इवन कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम बहुत मूवी और इन चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते। आई मीन वी हैव टू सेव आवर टाइम, बट अगेन कुछ ऐसी मूवीज़ भी आती हैं जो आपको लगता है कि दैट विल बी एन इंस्पिरेशन टू, लेकिन उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना कि जो मूवी में दिखा रहा है वही फैक्ट है। एक्चुअली इस टॉपिक को लेने का पर्पज़ वही था। समहाउ मूवी की डिटेल बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं जानता था, उस टॉपिक पे डिस्कशन थोड़ा कम रहा, बट एसेंस यही है। मूवी में भी जो एसेंस है वो यही है। कलयुग यानी कली एक पर्सनैलिटी है, कलयुग एक टाइम फेज़ है, और उस समय में सब कुछ डिग्रेड होगा। हमारी क्वालिटी, लाइफ क्वालिटी डिग्रेड होती चली जाएगी, हमारी एज कम होती चली जाएगी, हमारी कैरेक्टर्स, आई मीन क्राइम बढ़ जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेस बंद हो जाएंगी। अभी देख रहे हैं, अभी तो कलयुग अपने बचपन में है, केवल 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, 4,27,000 वर्ष अभी उसके और हैं। एक दिन हम वीडियो देख रहे थे, उसमें बहुत गंदा था, क्या? मतलब बहुत गलत होगा। नहीं, अभी तो आपने भाई, अगर इसको आपको जानना भी है तो श्रीमद् भागवतम 12th कैंटो 2nd चैप्टर पढ़िए,
ये बता नहीं, गंदा बता रहे हैं, हमें लग रहा है गंदा, वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। नहीं, फ्यूचर में वो कह रहे हाँ। हैं इससे बुरा होगा। बहुत। और कुछ ऐसी बात बताई नहीं जो आप सुन नहीं सकते। नहीं सुन सकते हैं। जल्दी कौन होता है? I mean, you just imagine, प्रलय होता है ना। just imagine, आपको सुनो। हाँ, ये प्रभु जी, हम रिकॉल नहीं होना चाहते। that's why to hear this subject, but I'm telling you, ये जो जब किसी की डेथ होती है किसी के यहाँ, तो मान लीजिए उनके यहाँ वो गरुड़ पुराण का पाठ होता है, कई लोग बोलते हैं कि मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, बट अंडरस्टैंड ये स्क्रिप्चर्स में ये सारी जो डिटेल्स हैं ये हमें डराने के लिए नहीं, अगर मान लीजिए आउट ऑफ फियर, बट एटलीस्ट अगर हम पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं आउट ऑफ फियर, तैयार है। एटलीस्ट वी आर टेकिंग शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, माई लॉर्ड प्लीज़ नो नो मैं नहीं आना चाहता। अब अवेयरनेस नहीं होगी तो मैं इस मूवी को उस पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रिशिएट कर रहा था कि इट्स गुड कि एटलीस्ट पीपल आर बीइंग अवेयर कि देखो आगे आने वाला जो टाइम है ना वैसा ऐसा होने वाला है। आज हमें जो फैसिलिटीज़ मिली हैं, जो एसोसिएशन मिला है, लेट्स यूटिलाइज इट, लेट्स मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन। प्रभुपाद कहते हैं वी आर इन कलयुगा, it's a bad time, we are in this material world, this is bad, we are spiritual being, but let's make the best use of bad bargain। ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, best use of bad bargain। we are not supposed to be here in this material world, but we are here, what we can do now, so let's make best use। so अब हमें उसके लिए क्या करना है? taking shelter of the Lord, chanting, reading, hearing, right? और जैसे आप मूवी की बात कर रहे हैं, यस इफ़ इट इज़ गिविंग यू सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन टुवर्ड्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, को है अलर्ट रहना है, ये आपको डिविएट न करे, ड्रैग न करे, इधर उधर न ले जाए। तो कुछ मूवीज ऐसी हैं जिसमें अब राधिका है, बहुत शी वाज, राधिका मणिकर्णा को था कि जैसे नहीं देखना है देवर देयर, अच्छा। देखा उन्होंने, तो अगर लेकिन अब उनसे कुछ रिव्यू मैंने लिया, आई मीन देखेंगे तो जो लोग भागवतम भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, आपको थोड़ा सा ट्रेलर भी मिल जाएगा ना, आप देख लेंगे, आप सब समझ लेंगे अंदर क्या चल रहा है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप अपना पूरा समय उसमें लगाएं, है ना। तो चूँकि मुझे इस टॉपिक पे बोलना भी था तभी मैं देखने नहीं गया, मैंने कहा वाई टू वेस्ट टाइम। मैंने ट्रेलर देखा 2 मिनट का, वो उन्होंने सैम्पल भेजा था, दिस इज़ व्हाट द मूवी, और एसेंस सब पता है। तो ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू येस वी शुड नो द कलयुगा, वी शुड नो द इम्पैक्ट, how it is going to be degraded, or know how the life quality will be, that will inspire us to be more serious about the practices we are doing। हमें निकलना है इस लाइफ से, इसी लाइफ में हमें इस साइकिल से जो बर्थ डेथ, ये मटेरियल वर्ल्ड, ये डिफरेंट एजेस, हमें निकलना है। अब हमें इस मटेरियल वर्ल्ड की जो बाउंड्री से बाहर निकल कर स्पिरिचुअल वर्ल्ड या उस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को हमें पाना है। हाउ मच एफर्ट आर वी पुटिंग दैट मच एफर्ट जितनी रिक्वायर्ड है? हम क्या हमारा हृदय शुद्ध हो गया है? टाइम टू टाइम वी शुड इवैल्यूएट व्हाट काइंड ऑफ एसोसिएशन वी आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, कई वर्ष हो जाते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी प्रैक्टिस करते हुए, और जब कभी हम बैठते हैं और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, या कई बार ऐसी गलतियाँ, ऐसी बातें लगता है माय गॉड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कब ये शुद्ध होगा? बहुत इम्प्योरिटीज़ हैं हार्ट में। और मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशंस आएंगी, और ये जो सिचुएशन है इसको भी हमें पॉजिटिवली, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जस्ट हमेशा डीमोटिवेटेड या एकदम जिसको कहते हैं कि एकदम होपलेस, ये होपलेस होने के लिए नहीं है। एटलीस्ट वी शुड अंडरस्टैंड आवर पिटी कंडीशन कि माय लॉर्ड आई एम जस्ट इनसिग्निफिकेंट, I can't do anything. Without your mercy there is no hope. Without your shelter there is no hope. तो इस कलयुग में सिर्फ अगर इतना हम सोच लें कि जिस दिन ये सोच लेते हैं बहुत क्वालिफाइड है, तो भी ये डेंजरस है। हमें सिर्फ यही समझ लें कि वी आर नॉट क्वालिफाइड एट ऑल, वी आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ डिवोटीज, ऑन द मर्सी ऑफ लॉर्ड। हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, फिर बाकी उनके ऊपर छोड़ देना है। हमें इसी माइंडसेट के साथ जितना हो सके चैंटिंग करनी है, रीडिंग करनी है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं कुछ सेवा करने की, वी शुड डू दैट, और बाकी उनके ऊपर छोड़ देना है। प्रभु आप जो चाहें।
अपनी क्वालिफिकेशंस हम उस पर्पस को अचीव नहीं कर पाएंगे जो पर्पस है कृष्ण प्रेम। तो हमें श्रवण आदि यानी श्रवण कीर्तन ये सब हमें करना है। और प्रभुपाद कह रहे हैं इसीलिए इस मूवमेंट को बनाया है। और वो जो दूसरा फिर दे रहे हैं बैड एसोसिएशन, यानी हमें बैड एसोसिएशन से बचना है। तो बैड एसोसिएशन में कौन कौन से एसोसिएशन है? प्रभुपाद कह रहे हैं ज्ञानी, कर्मी एंड व्हाट योगीज। तो ये सब शब्द हैं, आज डिस्कस करते हैं। टाइम क्या हुआ अभी? टाइम क्या हुआ एक बार मुझे बताइएगा। 12:05 ओके। ज्ञानी, योगी, कर्मी कह रहे हैं इनका एसोसिएशन नहीं करना है। भाई ज्ञानी, योगी, कर्मी कौन लोग हैं ये? क्लियर है ये? हु इज कर्मी? कर्मी से शुरू करते हैं। हु इज कर्मी? आप लोग भगवद गीता पढ़ चुके हैं इसलिए मैं एक्सपेक्टेशन कुछ और रख रहा हूँ। कर्म, कर्मी कौन है? मटेरियलिस्टिक, हार्ड कोर मटेरियलिस्टिक पीपल, जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिनका एक ही पर्पस है गिव मी मोर, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, सिर्फ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, मनी और सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये है हार्ड कोर कर्मी, यानी ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, ईट ड्रिंक बी मैरी। ये हार्ड कोर जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं ये उनकी फिलॉसफी है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, लोन लो एंजॉय करो। हार्ड कोर मटेरियलिस्टिक। कल किसने देखा है? शरीर एक बार मृत्यु हो जाएगी तो कल के बारे में, यानी वो उससे उन्हें आत्मज्ञान नहीं है, उन्हें फ्यूचर या नेक्स्ट लाइफ कुछ पता नहीं। जो करना है अभी कर लो। ये है कर्मीज। नो एसोसिएशन ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल। क्योंकि जैसे ही मटेरियलिस्टिक या बहुत मटेरियल डिज़ायर्स होती हैं, आप जिसके एसोसिएशन में आओगे, डिवोटीज़ के एसोसिएशन में आते ही आपकी डिज़ायर डेवलप होगी कि मैं भी एडवांस करूँ कृष्ण कॉन्शियसनेस में, मुझे भी इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलना है, राइट, मुझे उसके लिए चैंटिंग करनी है, ये डेवलप होगा डिज़ायर। लेकिन जैसे ही आप मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन में आएंगे, लगेगा अरे लाइफ में तो बहुत कुछ है करने को, है ना। लोग देखो, लोग तो लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वो मूवी भी जा रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सो मच एन्जॉयमेंट इज़ देयर। आप डिविएट हो जाएंगे। सो वी हैव टू अवॉइड सच एसोसिएशन, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। तो प्रैक्टिकली इसको डिस्कस करना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेटलिस्टिक डिज़ायर के साथ हैं। एटलीस्ट जब हम एसोसिएशन में, डिपेंडिंग अपॉन एसोसिएशन मीन्स बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, जब हम उनके कांटेक्ट में आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एकदम रिजेक्ट कर देना है, कांटेक्ट में नहीं आना। व्हेन यू गो और व्हेन यू आर कमिंग टुगेदर, आपको इतना ध्यान रखना है कि आप उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, उनके बिहेवियर या उनके माइंडसेट से या उनका जो अप्रोच है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, उससे आप इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप अपनी प्रैक्टिसेस में इतने स्ट्रॉन्ग हैं, कन्विंस्ड हैं कि आपके प्रैक्टिसेस या आपके बिहेवियर से वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। उनको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि यार मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया, ये देखो ये भक्त लोग सिंपल लिविंग और क्या खुश रहते हैं, मेरे पास तो इतना सब कुछ है, फिर भी मैं हमेशा दुखी हूँ, परेशान हूँ। ऐसी डिज़ायर उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए उनको, देखो क्या मिला तुम्हें भक्ति में जाकर, हाँ लाइफ बेकार कर लिया, हम देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। सो वो इन्फ्लुएंस्ड होनी चाहिए। कर्मीज हो गए, ज्ञान और ज्ञानीज। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी तो बहुत अच्छी बात है, ज्ञानी लोगों का संग करना चाहिए। कौन से ज्ञानी? हाँ, मायावादी। यस, ज्ञान भी अलग अलग प्रकार का होता है। हाँ, बहुत से लोग मिलेंगे आप, बहुत ज्ञान है लेकिन भगवान में विश्वास नहीं है। एथिस्टिक पीपल, यानी बहुत सारा ज्ञान पाया और उस ज्ञान के बेसिस पे ही भगवान नहीं है, या एथिस्टिक तो हो गया, एक तरह से कर्मी ही हो गया। भगवान से अपने आप को बड़े मानते, अपने आप को, या अपने आप को ही भगवान माने। हम कर रहे हैं तो हमारी सक्सेस मिल मतलब उनको पता है भगवान है, फिर दे कंसीडर देमसेल्फ दे आर ग्रेटर। आई थिंक ज्ञान ज़्यादा होने से क्वेश्चन भी आदमी बहुत करने लगता है। नहीं, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन तो अच्छी बात है, खत्म हो जाता है। क्वेश्चन इज गुड साइन ऑफ इंटेलिजेंस, बट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन? क्वेश्चन इज गुड। आई मीन इट हैपेंस एक्सेप्टेंस, वो बात एक्सेप्टेंस। इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, दे जस्ट कीप। हाँ, आई मीन वही चैलेंजिंग एटीट्यूड। ज़्यादा नॉलेज, अब ज़्यादा एक्चुअली नॉलेज इज़, भगवान तो बता है
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ नॉलेज। एक है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और एक ऑर्डिनरी नॉलेज, या जो भगवान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो भगवान से संबंधित है, और ऑर्डिनरी नॉलेज, मटेरियल नॉलेज, जहाँ भगवान नहीं है। तो हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ज्ञानीज की बात की जा रही है, ऐसा नॉलेज या जो मेंटल स्पेक्यूलेशन जो भगवान से दूर लेकर जा रहा है ना, या भगवान की एग्जिस्टेंस में हमारा बिलीफ वो डेवलप नहीं होने दे रहा है, ऐसा ज्ञान जो बाधा है, भक्ति के मार्ग में जो बाधा है, ऐसा ज्ञान या ऐसे ज्ञानी। अब यहाँ पे स्पेशली मायावादी की बात की जा रही है। तो मायावादी ये शब्द हम सुनते रहे, वो इज़ मायावादी। बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। प्रभुपाद जब भी मायावाद की बात आती है तो बहुत आप देखेंगे जो मूड है, चाहे इस पूरे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, चाहे वो प्रभुपाद हो, चाहे वो श्री चैतन्य महाप्रभु हो, या जो भी आचार्य, वैष्णव आचार्य, मायावाद को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। यहाँ भी वही बात बताई जा रही है। मायावाद, इवन श्री चैतन्य महाप्रभु वो भी स्टेटमेंट देते हैं, मायावाद भाष्य सुनिले वही सर्वनाश। अगर मायावाद जो कमेंट्री है, भगवद गीता या भागवतम की जो कमेंट्री, मायावादी कमेंट्री, उसको सुनने से सर्वनाश हो जाता है, यानी हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। क्योंकि ये मायावादी किसको कहते हैं? मायावादी, ये आप लोग बताइए, मायावादी किसको कहते हैं? वो इज़ मायावादी। माया क्या है? मायावाद अपने आप को सब कुछ भगवान समझते हैं, अपने आप को। वो आपने करना उसको चाहते हैं। अद्वैत सिद्धांत सुना होगा, हाँ, Oneness. Oneness. इसको मायावाद कहा गया है। यानी जो आप बात कर रहे हैं अभी कि यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब कुछ जो है कारण जो है वो ब्रह्म है। ये बात सही है, ब्रह्म जो है वो सोर्स है, लेकिन वो जिस ब्रह्म की बात करते हैं, यानी ब्रह्म जो निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, तो पहले वो भगवान को एज ए पर्सनैलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरा मिस्टेक क्या होता है कि शब्द देखेंगे तो बिल्कुल सही है, अहम ब्रह्मास्मि। अब ये सुनेंगे तो आपको क्या लगेगा? मैं ब्रह्म हूँ, ये सही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सोल हूँ, आई एम स्पिरिचुअल, बिल्कुल सही है। लेकिन उनका जो माइंड सेट है, अहम ब्रह्मास्मि मीन्स एको हम, ये मायावादी कॉन्सेप्ट है। एको हम यानी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आप में से कितने लोग सहमत हैं? अब ये भी स्टेटमेंट सही है और गलत भी है, इसको कैसे समझना है? उनका कहना है, जो मायावादी कॉन्सेप्ट के लोग हैं, एको हम मीन्स कि मैं और भगवान एक ही हैं, बहुत छोटा अभी हम अलग अलग हो गए हैं, और जैसे ये माया का आवरण, ये शरीर समाप्त होगा, हम मर्ज हो जाएंगे, हमारा एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा, हम एक हो जाएंगे। अरे वो समुद्र में और बूंद में ना फर्क नहीं समझ पाते। वो समुद्र तो समुद्र होता है, समुद्र में बूंद समा सकती है, पर हाँ। बूंद में समुद्र नहीं। और ये एग्जाम्पल जो आप दे रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को भी वो कोट करेंगे कि जैसे समंदर में एक बूंद, अब क्या है, बूंद का अभी अलग एग्जिस्टेंस तो है, समुद्र लेकिन में जैसे ही उस समुद्र बूंद रहेगा, को हम भगवान समंदर में भगवान मिला है। देंगे तो अपना एग्जिस्टेंस तो फिनिश हो गया। लॉजिकली ये जो मायावादी फिलॉसफी है, आप लोग कन्विंस हो जाएंगे अगर कोई सुनाएगा। और वो सब फर्क नहीं समझते। लेकिन अब आपको समझना है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि परमात्मा भी है, भगवान भी है। और वो इस- गुणों के आधार पर जब क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटेटिवली हम में समानता है। भगवान सच्चित आनंद है, सत्य यानी इटर्नल, शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं। चित ज्ञान से पूर्ण है, हम भी ज्ञान से पूर्ण हैं। और आनंद ये हमारा नेचर है। तो सच्चित आनंद के बने हुए भगवान हैं, और भगवान का अंश होने के नाते वही गुण आत्मा में भी है। तो गुणों के आधार पर हम एक हैं, और उसके जैसे लेकिन फिर भी भगवान भगवान है भगवान है। और जीव जीव है। और ये पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes. हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं। भगवान हमेशा भगवान है और जीव हमेशा जीव है। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो हमारी फिलॉसफी है, जो वैष्णविज्म है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो कभी भी वो स्थिति नहीं आएगी कि आज हम भगवान से अलग हैं और कल हम मर्ज हो जाएंगे, हमारा एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा।
न त्वेवाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कोट कर रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम नहीं रहे हो, मैं नहीं रहा हूँ और ये राजा न रहे हो। यानी भविष्य में भी हम, आज भी हम अलग अलग हैं और भविष्य में भी हम सभी रहेंगे। चाहे आप भगवत धाम में भी जाएंगे तो भगवत धाम में आपकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आपका अपना एक वहाँ रोल है। आप वहाँ भगवान नहीं बनेंगे, आप भगवान के सेवक के रूप में ही रहेंगे। ठीक है, तो हमारा यही स्वरूप है। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं। उनकी संतुष्टि, उनकी सेवा हमारा परो धर्म है। यहाँ दिया है स्वभय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षजे यानी भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा यही हमारा परम धर्म है। चाहे हम यहाँ हैं, चाहे हम भगवत धाम में हैं, उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनके लिए हमारे हृदय में प्रेम, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और वो कैसा प्रेम? अहेतुकी अप्रतिहता, उसमें कोई अल्टरियर मोटिव नहीं, अहेतुकी, कोई अदर मोटिव्स नहीं, और अप्रतिहता यानी कोई बाधा नहीं, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड। ये है प्योर लव, ये हमारा पर्पस है। और ये हम भगवत धाम में भी जाके यही कर रहे हैं, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का की महिमा का गुणगान, उनकी सेवा, भक्तों का संग, भक्तों के संग में प्रसाद पाना, प्रसाद खिलाना, जो भी मस्ती करनी है, खेल करना है, सब भक्तों के संग में, यही जीवन। और उसी का अभ्यास करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने हमें ये मंदिर दिए हैं। ये प्रभुपाद कहते हैं ये इस्कॉन मंदिर, ये वैकुंठा है। या वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, वी आर ऑल डिवोटीज प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग। जो हमें भगवत धाम में जाके करना है वही यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। वहाँ अप्रिशिएशन है, वहाँ कंपैशन है, वहाँ प्रेम है, सेवा है। हाँ, तो यही सब क्वालिटीज़ हमें यहाँ डेवलप करनी है, प्रैक्टिस करनी है, राइट। सो मायावादी जो उनकी जो फिलॉसफी है उसमें कि उनकी ये सोच होती है कि बस एको हम, मैं ब्रह्म में लीन होना, अपना एग्जिस्टेंस समाप्त। यानी वहाँ कोई सेवा का कोई प्रश्न ही नहीं है। सेवा कहाँ होगी? लविंग एक्सचेंज कहाँ होगा? जहाँ एक से ज़्यादा लोग होंगे। जब आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो सेवा कहाँ रह गई? और सोल, आत्मा का ये स्वभाव है सेवा करना। आत्मा एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है वो। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि चूँकि जो सोल है वो बहुत ही एक्टिव है। प्रभुपाद बताते हैं, एक बात समझिए इस तरह से, कोई व्यक्ति बंधा हुआ हो और बहुत एक्टिव हो, और बहुत एक्टिव है, बंधा हुआ है फिर भी बहुत एक्टिव है, हर मोमेंट में कुछ एक्शन चल रहा है, और उस व्यक्ति को आप फ्री कर दीजिए तो वो शांत हो जाएगा या और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा? हाँ, प्रभुपाद इस एग्जाम्पल को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो सोल अभी बद्ध अवस्था में है, शरीर के अंदर है, फिर भी वो एक्टिव है। और जब मुक्त अवस्था में ये सोल अब शांत, कोई एक्शन नहीं, कोई सेवा नहीं, एक जगह पे ऐसे बैठी रहेगी। और ऐसी सिचुएशन में आप अभी सोच कर देखिए, प्रैक्टिकली आपको अकेले किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रकाश हो। ब्रह्म ज्योति मीन्स प्रकाश, भगवान के शरीर की कांति। अब उस प्रकाश में आप बस बैठे हुए हैं और एकदम शांत, ओम शांति, और कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई सर्विस नहीं। हाउ लॉन्ग विल यू बी एबल टू सर्वाइव? कोई बात करने वाला नहीं, आप कोई लविंग एक्सचेंज नहीं। हाउ लॉन्ग? जो पीस है, दैट्स अ वेरी पीसफुल एटमॉस्फेयर, वेरी पीसफुल एटमॉस्फेयर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बट इज दिस योर रियल नीड? कोई सफरिंग नहीं है। इज दिस योर रियल नीड? जस्ट बीइंग पीसफुल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हाउ लॉन्ग विल यू बी एबल बी इन दैट सिचुएशन? नहीं रह सकते ना, क्योंकि नेचर नहीं है ना हमारा। हमारी नेचर में है सेवा, लव, और वो रिलेशनशिप में होगा। और रिलेशनशिप वही है जहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं, भगवान हैं, भक्त हैं। तो इसीलिए जो मायावादी कॉन्सेप्ट है, इसमें हम अपने एग्जिस्टेंस को खो देते हैं। इसीलिए कहा गया सर्वनाश यानी
हमारी जो रियल स्पिरिचुअल जो 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 नेचुरल आई मीन जो रिलीज जो हमारा स्पिरिचुअल डेथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल डेथ बोलते हैं इसको। इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते ही आपकी स्पिरिचुअल डेथ हो गई। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक चीज़ को, बहुत डिटेल है ये सब्जेक्ट, इसमें वो कहते हैं ऐसे लोग जो इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हैं, जो फेथ रखते हैं, वो क्योंकि इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में और मटेरियल वर्ल्ड के रिलेशन से, स्पेशली रिलेशनशिप यानी बॉडी, जैसे हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि सारी समस्या का कारण ही ये रिलेशनशिप है। न होंगे लोग, जैसे कहते हैं न होंगे तो उनकी सोच क्या होती है, वो मटेरियल वर्ल्ड का जो एक्सप्रेशन है ना, जो एक्सपीरियंस है, वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग है, हम सभी को भी ऐसा लगता है, इतना फ्रस्ट्रेटिंग है कि लगेगा कि यार जब तक ये फॉर्म है, लोग हैं, फॉर्म मतलब दे आर इन पर्सनैलिटीज़, जब तक ये लोग हैं, जब तक ये एक्सचेंज है ना, ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। इसीलिए आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये क्या करते हैं, रिजेक्ट, नेति नेति, इसको रिजेक्ट कर दो, चाहिए ही नहीं, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये है कॉन्सेप्ट मायावाद। प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपकी आइज़ में प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट हुआ है, क्या करोगे, आँख निकाल दोगे या आँख का इलाज करोगे कौन सा कॉन्सेप्ट लेना है? तो ये जो मायावाद कॉन्सेप्ट है ना, ये कह रहे हैं आँख निकाल दो, आँख नहीं होगी कैटरेक्ट। लेकिन जो सही अप्रोच है, बीमारी है तो बीमारी को ठीक करो। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में फ्रस्ट्रेटेड हैं, भगवद गीता, श्री चैतन्य महाप्रभु, सारे गोस्वामी हमें शिक्षा दे रहे हैं, अविद्या के कारण। अविद्या बीमारी है और उस बीमारी को दूर करने के लिए मेडिसिन दिया गया है, नाम जप करना है, भक्तों के संग में रहना है, भगवान के विषय, भगवान की सेवा करनी है, इससे अविद्या दूर होगी, भौतिक संसार से मुक्त होंगे, यहाँ रहते हुए भी संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, और इस संसार से मुक्त होकर जब आध्यात्मिक जगत में होंगे। प्रभु जी, मायावाद they don't give you all the scriptures और ये सब भागवत या नो Externally- कहाँ से arise? नो मायावादी, अब यही ये टॉपिक को आप लोगों को समझना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बाहर से आपको समझ में नहीं आएगा, बड़े बड़े ऐसे ऐसे मायावादीज़ हैं, बड़े नंबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो स्क्रिप्चर्स भी पढ़ते हुए नजर आएंगे, वो भगवद गीता भी कोट करते हुए नजर आएंगे। वो नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ के सब कुछ समझ जाएंगे। आपको प्रिंसिपल समझना है। जैसे ही व्यक्ति बोलता है भगवान निरांकार, कोई आकार नहीं है ना, जगत मिथ्या, तो ये प्रभु जी, ये तो ये सब पुराने अपने ये सब कुछ नहीं फॉलो, कुछ नहीं मानते करते ये लोग, कुछ नहीं करते। ये follow the same एक्सटर्नली interpretation अब डिस्कस कर रहे हैं तो उसको समझिए। बहुत knowledge है, एक्सटर्नली कुछ नहीं मतलब, एक्सटर्नली वहाँ पे हो सकता है लॉर्ड शिवा की मूर्ति भी हो, विष्णु जी की मूर्ति हो, दुर्गा माता की मूर्ति हो, गणेश जी की मूर्ति हो, लेकिन ये लोग एक तरह से हिडन नास्तिकता, बहुत ज्ञानी होते हैं ये नॉलेज भी खूब लॉजिक इधर उधर करेंगे, हिडन, जैसे ऊपर से जो कवरिंग है, जो दिखने में, जिसको नॉलेज, जैसे आप लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, जिनको ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो देखेंगे तो उनको लगा अरे हाँ वो भी तो भक्ति कर रहे हैं, वो भी तो भगवान विष्णु की मूर्ति है, तस्वीर भी लगी है कृष्ण भगवान की, वहाँ गणेश जी भी हैं, हाँ मेडिटेशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो चारों तरफ की इधर उधर की बातें घुमा फिरा के बस आपको लॉजिकली कुछ ना कुछ सेट कर देंगे, लेकिन उनकी श्रद्धा भगवान में और शास्त्रों में नहीं होगी, भगवान की भक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होगी, वो सब मेंटल स्पेकुलेशन है, चीज़ों को एडजस्ट करके अपनी फॉलोअर्स बढ़ाना और अपना पॉलिटिकल या सोशल पर्पस। आई मीन यू ऑल कैन सी। अब उसमें क्या है कि आपको प्रिंसिपल्स क्लियर है, फिलॉसफी क्लियर है, व्हाई वी आर स्टडीइंग अगेन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज प्योरिटी ऑफ हार्ट, पर्पस इज नॉट टू क्रिटिसाइज बट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। कौन क्या कर रहा है, इसीलिए हमें इसकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। जब क्लैरिटी होगी, अगर क्लैरिटी नहीं है तो सोने और पीतल में अंतर, कोई किसी साधारण व्यक्ति के पास जाएंगे और सोना है या पीतल है, क्या समझेगा वो? डिफ्रेंशिएट कौन कर पाएगा? जिसको सोने के बारे में जानकारी हो, है ना। तो किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास जाएंगे तो वो डिफ्रेंशिएट, नहीं तो ऊपर से लगेगा अरे वाह क्या सब भक्ति चल रही है। जी नहीं, वो भक्ति एक कवरिंग है,
वो ऊपर से दिखावा है, अंदर कोई डिवोशन नहीं है, कोई भगवान में कोई श्रद्धा है, कोई फेथ नहीं है। रिचुअल्स नज़र आ सकती हैं, ये शिवरात्रि मनाई जा रही है, ऐसे बड़े बड़े उत्सव एकदम ग्रैंड स्केल पे, लेकिन डिवोशन नहीं, शास्त्रों में कोई फेथ नहीं है। नो, तो ये मायावादी एसोसिएशन है। वेदों को पढ़ेंगे, वेदों की बातें कोट करेंगे, वेदों की बात करेंगे, और वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदश्च सर्वैर हमें वेद्यो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और कृष्ण को रिजेक्ट कर देंगे। प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली कोट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो भगवत गीता को ही कोट करेंगे लेकिन कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे। वो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, वो इसलिए कोट करते हैं भगवत गीता को या भगवत गीता के ऊपर लेक्चर करते हैं क्योंकि भगवत गीता फेमस है, भगवान कृष्ण फेमस है, और वो इनको सिर्फ मीडियम बनाते हैं अपने आप को फेमस होने के लिए। बहुत से ऐसे थिंकर्स मिलेंगे, वो कृष्ण को सिर्फ स्वीकार नहीं करेंगे, वो कृष्ण की बात भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता लोग विश्वास करते हैं ऑथेंटिक स्क्रिप्चर है, कोट करेंगे भगवत गीता से और उसमें अपनी बात रख देंगे। वही श्लोक कोट करेंगे लेकिन उसकी मीनिंग कोट कर देंगे अपने अब उसको हम जो भी कहें, इग्नोरेंस, पर्सनल मोटिव, कर्मास, जो भी आप कह लीजिए, हर कोई जो आप सुन रहे हैं, भक्ति, ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उसका एकमात्र उद्देश्य है प्योर लव, भक्ति, कोई और अल्टीरियर मोटिव है ही नहीं। हाँ, और ये बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं जिनको ये बात सुनने और समझने को मिल जाए। और ये जो आप पूछ रहे हैं कि क्यों उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कई फैक्टर्स होते हैं, हमारी कर्मास, हमारा एसोसिएशन, इग्नोरेंस। आप बड़े बड़े लोगों को जो आज सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंटेलिजेंट, कई ऐसे स्पीकर्स भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया के पावर से तो बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहे हैं। ये बात आप सोचिए, कोई भी ऐसी मायावादी जहाँ क्लास होती है जहाँ प्योर लव की बात नहीं हो रही है, प्योर डिवोशन की बात नहीं हो रही है, वहाँ भीड़ क्यों दिखते हैं आप? कोई समझ नहीं है उनको, जस्ट चल रहा है एक मोमेंटम, यहाँ ज़्यादा फॉलोअर है, कई ऐसी संस्थाएं हैं, आप जाएंगे, हाँ यहाँ सामान सस्ता मिलता है, मार्केट रेट से आधा मिलता है, भीड़ जा रही है। तो किसी को देखो, प्रभुपाद कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। चीट करने वाले लोग भी हैं और चीट होने वाले लोग भी हैं। अब आपको सस्ती चीज़ चाहिए तो आप किसी सस्ती दुकान पे जाओगे। हाँ, अगर आपको आर्टिफिशियल, प्रभुपाद कहते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए तो आप आर्टिफिशियल शॉप पे जाओगे। डायमंड चाहिए तो आपको डायमंड शॉप पे जाना होगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे द प्राइस। आप लोग क्यों अब इतनी तपस्या, इतना सब कुछ, हाउ वाई, इतना क्यों नहीं होते इतने लोग यहाँ पे आप जो डिस्कस कर रहे हैं ये सबकी बुद्धि से परे है, ये सबको समझ में आने वाला नहीं है। ये है बहुत सरल सी चीज़। हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, हमारा ईगो लेवल इतना हाई है, हमारे अपने जो भी अनर्थाज इतने ज़्यादा हैं, ये सिंपल प्रेम की भाषा हमें समझ में नहीं तो हम क्या सीख रहे हैं? कोई भी ग्रंथ, भगवत गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, चैतन्य चरितामृत पढ़ें, हर जगह एक ही भाषा, एक ही सब्जेक्ट, प्रेम, भगवत प्रेम। तो यहाँ पर मायावादी कॉन्सेप्ट में भगवान के स्वरूप को ही स्वीकार नहीं किया गया, तो सेवा तो बहुत दूर की बात है। सेवा किसकी करेंगे? तो हाँ, सेवा है ही नहीं। मैं ही, जब अपने आप को हर व्यक्ति मान लीजिए, यहाँ पे हम सभी सोच लें कि मैं भगवान, हाँ, सभी भगवान, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान नहीं हैं। नहीं, वो कर्मास वर्मास सब बिलीव करते हैं। एटलीस्ट वॉट एवर दे आर, आप देखेंगे वहाँ पे जो टीचिंग्स होंगी, हाँ, ये जो गुडनेस की बात है, गुड बिहेवियर, गुड टॉक, गुड लिविंग स्टैंडर्ड, वो सब बातें चलेंगी। बट वी आर गोइंग बियॉन्ड दैट। हमारा पर्पस सिर्फ गुडनेस नहीं है। व्हाट इज़ द यूज़ अगर आपकी सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं बट यू डू नॉट हैव दैट लव फॉर गॉड? What is the use of such quality? Because all these are material qualities. आप कितने अच्छे हो लेकिन पर्पस अचीव करने में आपको वो हेल्प नहीं कर रही हैं, राइट? सो गुडनेस तक वो एजुकेशन देंगे और बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मायावाद को हम ये समझ के चलिए कि जो भगवान के अस्तित्व में जिनका विश्वास नहीं है, जो शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, शास्त्रों को पढ़ते होंगे, कोट करते होंगे, लेकिन पर्पस उनका अपना है, अपने आप को भगवान, मैं वही हूँ,
और वही वो भगवान की सेवा नहीं करते, वो स्वयं भगवान बनते हैं और भगवान की तरह इनेक्ट करके वो एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। ये है मायावादी। ऐसे लोगों का एसोसिएशन, ऐसे लोगों को सुनना, मायावाद भाष्य सुनिले होए सर्वनाश, आपकी भक्ति चली जाएगी। ऐसे लोगों का एसोसिएशन नहीं करना है। बहुत स्ट्रांगली इसमें मेंशन पढ़िएगा इसको, मैं तो इसके डिटेल में नहीं गया। उनके साथ कोई ज़्यादा एक्सचेंज कुछ करना ही नहीं चाहिए, आपको अलर्ट रहना चाहिए, बचना चाहिए। हाँ, क्योंकि भक्ति, ये जो भक्ति लता हम सभी के हृदय में जो बीज है, जिसका हमने ये जो सीड भक्ति का जो हम लगाया है हमने, उसका जो हम रोज़ सिंचन कर रहे हैं, हाँ, पानी डाल रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, और ये सब नष्ट हो जाएगा। बड़ी मेहनत से बनती है ये ना, तो उसको हमें एसोसिएशन से बहुत स्ट्रॉन्ग साधना चाहिए अगर हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। हेट नहीं करना है। इवन मायावादी सन्यासी या मायावादी भी है, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी नाम सुनेंगे आप लोग, अभी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये अपने आप में डिटेल सब्जेक्ट, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, आज ज़्यादा समय हो जाएगा। बट डू नॉट हेट एनीवन। हमें प्रभुपाद ने इवन मायावादियों को भी सर्व किया। जब वो इवन न्यूयॉर्क में भी थे तो मायावादी एसोसिएशन, वो कौन थे, वन पर्सन जिनके साथ प्रभुपाद कुछ दिन रहे, उनके घर में रहे, खाना भी खाते थे, वो योगा टीचर थे और मायावादी कॉन्सेप्ट के थे। तो प्रभुपाद जब वो बीमार पड़ते थे तो उनकी सेवा भी करते थे। एज ए पर्सन वी हैव टू सर्व एवरीवन, वी हैव टू बी कंपैशनेट फॉर एवरीवन। बट जब सिद्धांत की बात आती है तो हमें सिद्धांतों में समझौता नहीं करना है। जो सिद्धांत है उसमें समझौता नहीं करना है, तो हमें अपने सिद्धांत पे बने रहना है। हमारा उद्देश्य भगवान की भक्ति है, प्रेम है, और उसमें कोई अगर बाधा बन रही है तो हमें उस एसोसिएशन से बचना है। तो ये एसोसिएशन में इन चीज़ों को, जो कर्मी, ज्ञानी और जो योगी भी क्या है, तरह तरह की ऐसे योगी जिनका उद्देश्य भगवान की भक्ति नहीं है, जो बड़ी बड़ी सिद्धियाँ, मिस्टिक, हाँ, तो ऐसे ऐसे वर्ड सिद्धियाँ हासिल कर लेंगे। बड़ी सारी सिद्धियाँ होती हैं, योग के माध्यम से लोग सिद्धियाँ हासिल करते हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, हाँ, अपने शरीर को छोटा बड़ा करना, आग में प्रवेश करना, पानी के ऊपर चलना, हाँ, और एक ही स्थान पे बैठे बैठे चमत्कार, ये सब सिद्धियाँ हैं। आज भी लोग करते हैं, बड़े योग सिद्ध लोग होते हैं, ऐसा करते हैं। और आज की जनता भी ऐसी है, चमत्कार को नमस्कार। थोड़ा सा चमत्कार दिखा दिया, किसी ने बोल दिया बाइक पे ट्रैवल कर रहे थे, पैर टूट गया था, 3 दिन में अपने आप ठीक कर लिया, अब पूरी जनसंख्या भाग गई उनकी ओर। लोग चमत्कार देखें, अरे पैर ठीक कर लिया। मान लीजिए मैंने अपनी सिद्धि से, अपनी योग सिद्धि से मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मैंने 3 दिन में योग सिद्धि से अपना पैर ठीक कर लिया। अब लोग उनको भगवान बना देंगे, हाँ भगवान। अब वो किसी और का पैर ठीक नहीं कर रहे हैं, बट इस चमत्कार से लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। I mean, प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाके ठीक कर सकते हैं। हाँ, सो एनीवे, पॉइंट इज, हम इन सिद्धियों के चक्कर में या इन चमत्कारों के चक्कर में जो उद्देश्य है भक्ति, उसको न खो दें। इसलिए ऐसे लोगों के एसोसिएशन में भी नहीं आना है जहाँ पे हमारा अट्रैक्शन ऑपुलेंसेस की तरफ बढ़ जाए, कि हमें भी कुछ ऐसी सिद्धि हासिल करनी है, कुछ ऐसा मैजिक दिखाना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह के जो एसोसिएशन है, कर्मी, योगी, ज्ञानी, ऐसे लोगों का एसोसिएशन नहीं, हमें एसोसिएशन करना है डिवोटीज़ का, जिनका उद्देश्य बहुत क्लियर है, भक्ति। हाँ, और भक्ति योग ये सरल विधि है जिसमें कोई ज़्यादा डिविएशन नहीं है। हाँ, तो इसमें गाइडेंस में रहते हुए हम जब इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो क्या है, यस, वी विल अचीव द पर्पस। तो यही सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और नाम की महिमा का वर्णन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। इस नाम के माध्यम से कृष्ण प्रेम देने के लिए हम सभी के पास आए हैं, और वो सभी को बिना किसी भेदभाव के कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण, जब वो झारीखंड जब वृंदावन के लिए जा रहे थे और बीच में झारीखंड जो जंगल है झारखंड का, उस जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो उस जंगल के रास्ते में भी चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का मिशन बहुत क्लियर था। वो जहाँ भी जा रहे थे सबको कृष्ण प्रेम बांटते हुए जा रहे थे। तो न सिर्फ मनुष्यों को, बल्कि जो सभी जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, सबको वो कृष्ण प्रेम दे रहे थे। अब भगवान, तो जैसे ही वो उस जंगल से गुजर रहे थे तो उस जंगल में जो शेर हैं, हिरण हैं, गाय हैं, जितने भी पशु पक्षी, हाथी, वो सभी चैतन्य महाप्रभु को देखने मात्र से वो
दोनों आपने दो पैरों पे खड़े होकर वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे। और जैसा आप पूरा डिस्क्रिप्शन चेतन चेतामृत में पढ़ेंगे, शेर और गाय एक ही जो है तालाब में वो पानी पी रहे हैं एक साथ। शेर और हिरन जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। तो ये भगवान के अंदर वो शक्ति है और ये नाम की महिमा है कि हमारे हृदय में लोगों के प्रति जितनी भी ईर्ष्या है, द्वेष है, वो सब समाप्त हो जाती हैं। सबके लिए हृदय में प्रेम प्रकट होता है, भगवान के लिए हृदय में प्रेम प्रकट होता है। और इसी प्रेम को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं और कृष्ण नाम उन्होंने हमें दिया है। तो नाम की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन है। हरिदास ठाकुर से श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि लोगों का उद्धार कैसे होगा। कौन पूछ रहा है? चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं। किससे? श्री हरिदास ठाकुर से। हरिदास ठाकुर जो कि नाम आचार्य हैं, रोज़ जो है वो 192 राउंड्स ऑफ चैंटिंग, 192 माला का जाप वो रोज़ करते थे। तो ऐसे नामाचार्य से श्री चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं और विनम्रतावश हरिदास ठाकुर तो कह रहे हैं, प्रभु आप तो भगवान हैं, आप तो सिर्फ आप अगर चाहते हैं तो मैं ज़रूर कुछ बोलूँगा, लेकिन वास्तव में आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं और आपकी कृपा से मैं कुछ बोल सकूँगा। तो इस तरह से विनम्रतावश वो क्या बोल रहे हैं, सबका उद्धार कैसे होगा, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि ये जो हरि नाम है जो आपने दिया है, ये आपका जो नाम या हरि नाम है, इससे सभी का उद्धार होगा। न सिर्फ मनुष्यों का, जो ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो कि यही नाम कीर्तन जब होगा और ये जो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, ये ऐसे लोगों का भी उद्धार कर देगा। तो ये नाम सिर्फ हमारा लाभ नहीं है, हम नाम जब करेंगे इसका लाभ हमें मिल रहा है, लेकिन इसीलिए आप देखेंगे इस्कॉन मूवमेंट में हरिनाम संकीर्तन आयोजित किया जाता है, स्ट्रीट संकीर्तन। क्यों? जाने अनजाने ये नाम लोगों के कानों में पड़ेगा और उनको अज्ञात सुकृति मिलेगी। आज नहीं तो कल वो कृष्ण भक्ति में आएंगे। यानी क्या बोला हरिदास जी ने, क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, भगवान का नाम, ये जो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, ये सभी का उद्धार करेगा। इसलिए ये हम सभी की सबसे बड़ी सेवा है, ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी, ग्रेटेस्ट सर्विस टू ऑल लिविंग एंटिटीज, चैंटिंग द होली नेम। इसको करेंगे रेगुलर। लाउड चैंटिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है। लाउड चैंटिंग जो स्ट्रीट संकीर्तन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कीर्तन। उससे हम अपना भी बेनिफिट और जितने लोगों को वो वाइब्रेशन सुनने को मिल रहा है। आप पार्क में बैठ के कर रहे हैं, जो वहाँ पौधे हैं, पेड़ पौधे, वो भी डिलीवर्ड, कीड़े मकोड़े वो भी डिलीवर्ड। इसलिए चैंटिंग करनी है दूसरों के बेनिफिट के लिए, अपना तो बेनिफिट होगा ही होगा। और एक है सॉफ्ट चैंटिंग, जब आप कभी अकेले बैठे हैं, भोर में कभी अकेले बैठे हैं जहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, यू कैन डू सॉफ्ट चैंटिंग। व्हेन यू आर, आप चैंटिंग कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप ही को सुनाई दे रहे हो सकता है अगल बगल बैठे लोगों को सुनाई ना दे रहा हो। एंड वेरी सॉफ्टली मेडिटेटिव चैंटिंग। कई बार लाउड चैंटिंग करते हैं, बोल बोल के तो थक जाते हैं। हाँ, तो दोनों का अभ्यास करिए, कभी बोल कर करिए अच्छे से, एंड कभी जब बहुत शांत वातावरण है, कहीं बैठे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम, मेडिटेट, चैंट, ये है सॉफ्ट चैंट। मुझे हरे कृष्णा, जैसे हिंदी में तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जो मंत्र का उच्चारण करेंगे कीर्तन करते हुए, वो कृष्ण या कृष्णा लोग बोलते हैं, हरे रामा बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन अगर हम रखें तो अच्छा है। बट मोर देन दिस इज मूड, क्योंकि कई ऐसी कंट्री हैं जहाँ लोग कृष्ण वर्ड शब्द बोल नहीं पाएंगे, तो क्या उनके लिए भगवान प्रकट नहीं होंगे? तो यहाँ पे हमें समझना है कि अगर हम बोल सकते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे यानी श्रीमती राधा रानी, राम यानी भगवान और कृष्ण भगवान। तो यहाँ पे राम बलराम जी और राम राम। तो जब हरे यानी भगवान की जो शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, तो श्रीमती राधा रानी। और प्रार्थना का भाव है इस महामंत्र में कि हे प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगाएं, हे श्रीमती राधा रानी मुझे भगवान की सेवा में लगाएं। इसी भाव में हमें नाम जप करते हैं, ठीक है।
सो बहुत सुंदर ये श्लोक हैं सब, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो हमने क्या क्या सीखा, क्विकली एक एक पॉइंट बताइए। आज क्या क्या हमने सीखा है, हाउ टू डेवलप लविंग रिलेशनशिप विद इन डिवोटीज कम्युनिटी, क्या क्या करना है। हाँ संकीर्तन, श्रवण, हाँ स्वेट देना और लेना। हाँ, कुछ गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, ठीक है। बेस्ट गिफ्ट क्या दे सकते हैं, प्रसाद खिलाना, और प्रसाद के लिए खुद भी पाना प्रसाद और इनवाइट करना, यस। और फ्रेंडशिप में अपने उनकी बातें सुनना, बातें लविंग एक्सचेंज, यस। हार्ट, ओपनिंग वंस माइंड, नो, ओपनिंग वंस हार्ट। तो कुछ भी एकदम मिलते रहिए आपस में, डिस्कस करिए, अच्छा आज क्या किया, कैसे किया, अच्छा और क्या करते हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस होने के लिए, अच्छा मैं भी ऐसा कर सकती हूँ कि अच्छा किचन में खाना बनाते समय कीर्तन चला सकते हैं, लेक्चर चला सकते हैं। ये सब डिवोटीज़ आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। सारी चीज़ें हो सकता है किताबों से ना मिले, लेकिन जब प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, अच्छा मॉर्निंग वॉक के लिए जाना होता है उस समय, कोई बात नहीं, मॉर्निंग वॉक के लिए माला लेकर जाओ साथ में, मॉर्निंग वॉक भी हो गया और चैंटिंग भी हो गई। ऐड कर दो, कनेक्ट कर दो एक्टिविटीज़ को, एटलीस्ट कुछ न से कुछ तो हो रहा है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है, समय नहीं है, ये नहीं है, सब हो सकता है। भक्ति में कोई बाधा नहीं मिल सकती। आप स्नान करने जा रहे हैं, चला दो एक कीर्तन, लेक्चर, कुछ वॉट एवर, डिफरेंट एक्टिविटीज़, यू कैन कनेक्ट विद दैट, राइट। तो लाइक दैट लेट्स मेक इट मोर, आई मीन एंगेज अवर सेल्फ इन सर्विस। और एक सर्विस और जो अवेटिंग सर्विस है, एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप सभी लोग अगर प्रयास कर सकते हैं, बिकॉज आप सभी के एफर्ट से ही हम उसे कर पाते हैं। और अब अच्छा एक चीज़ उसके पहले, वन अनदर रिक्वेस्ट, मैंने वैसे सीता कोमल माता जी ने मैसेज भी भेजा हुआ है। कल संडे का दिन है और 2 महीने में एक बार एक भक्ति ब्लिस प्रोग्राम जो टेंपल में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो अभी हमने जो बात की, यही सब प्रैक्टिकल लाइफ में, और ये थोड़ी सी ऑस्टेरिटी भी है, हो सकता है कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना पड़े, बट वंस इन अ वाइल लेट्स डू दैट। सो हालांकि वहाँ पर 4:30 बजे से एक्टिविटीज़, जो मंगल आरती प्रोग्राम और जो भी तुलसी आरती है, नाम जप है, भागवतम क्लास है, गुरु पूजा, सब कुछ, यानी ये 2 महीने में एक बार प्लान किया गया कि सभी भक्त एक दिन ऐसा संडे को आएँ और मॉर्निंग 4:30 बजे से लेकर 9, 9:30 बजे तक प्रसाद पाने तक एक साथ रहें। और ये सारी एक्टिविटीज़